Good morning, dear all. Respected Principal Ma'am, Director Sir, Chairman Sir, Administrator Ma'am, honored guests, dear teachers, and my dear friends. I am Vartya Ghandelwal hosting this special talk series Kuch Pal Angels के साथ with my friend Miss Avni. This is the final day of series talk. Through this we are interacting with a special people who expertise in the field of entrepreneurship. And now in this session we are going to interact with a successful businessman, Mr. Dinesh Khandelwal. Before engaging in the talk, my friend Avni will brief an introduction about our subject matter expert, Mr. Dinesh Khandelwal. Born on December 12, 1964 in Mehwa, Dausa district. Mr. Dinesh Khandelwal has been actively involved in business and social activities since his youth. Highly educated, Mr. Khandelwal is a successful entrepreneur and a respected businessman, as well as a keen social activist. In recognition of Mr. Khandelwal's entrepreneurial and business management skill, Tata Motors Limited, the country's largest automobile company, awarded him the dealership for the entire eastern Rajasthan region in 2005. This dealership also has showrooms in Dausa, Savai Madhopur, Karauli, Gangapur City and Dholpur. This dealership was the first in the country for a small town like Mehwa, granted by the late Ratan Tata, then chairman of the Tata Group, based on Mr. Khandelwal's high management qualities and capabilities. The true test of Mr. Dinesh Khandelwal's entrepreneurship began with the lack of skilled staff for a growing business in a small town like Mehwa. Despite struggles and financial losses in the first 2 years, he never gave up. He employed educated and semi-educated unemployed youth for rural areas, focusing on their skills, personality, and leadership development. Today, most of his companies, approximately 130 employees, are in their first job, and they have been continuously working with the company for the past 10 to 12 years. His innovative efforts to develop the skills of rural youth were recognized by Tata Motors Limited, and a documentary film based on this initiative was screened at a global conference in Sydney, Australia. Mr. Khandelwal has been honored with the North Bhushan Award from Tata Motors, the Best Employee Engagement and Development National Award presented by Mr. Kapil Dev from FADA and by the Government of Rajasthan. And today we have the opportunity to listen from this visionary businessman from our proximity about his journey towards success, constraints still he is facing, and his dreams and goals. Thank you. Now, I would like to invite our head girl, Ms. Pratishtha Joshi, for a welcome speech. Harnaz or Baat. A very good morning to our respected Principal Ma'am, Director Sir, Chairman Sir, Administrator Ma'am, our esteemed Chief Guest Shri Dinesh Khandelwal ji, respected teachers and my dear angels. आज कुछ पल एंजल्स के साथ सेशन 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिल रहा है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिन्होंने अपने अनुभव और मेहनत से अपना नाम बनाया है। खासकर अगर हम मेवा की ही बात करें तो यहाँ की प्रगति का भी एक हिस्सा बने। सर, आपका हमारे बीच होना हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है। आपके सफर से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, डेडिकेशन और समाज के प्रति जिम्मेदारी से ही असली सफलता मिलती है। On behalf of the entire Holy Angels family, I extend a very warm welcome to Mr. Dinesh Khandelwal ji. We are truly honored to have you with us today. अब इस स्वागत और सम्मान के रूप में हम अपनी तरफ से कुछ छोटे से टोकन्स ऑफ रेस्पेक्ट प्रेजेंट करते हैं। एक फ्लावरेबल रेस्पेक्ट फर्स्टली टू आवर एस्टीम्ड चीफ गेस्ट श्री दिनेश खंडेलवाल जी। अब इस सेशन के दौरान हमारे एंजल्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे और आपके उत्तर हम सब के लिए रियल लाइफ लेसन्स और प्रेरणा बनेंगे। Once again, sir, welcome to our school. Thank you.
Now, I would like to request Mr. Dinesh Khandelwal for his valuable words. होली एंजल्स स्कूल के निदेशक श्री रविंद्र मैथुसन, अन्य निदेशक, प्राचार्य एवं एडमिनिस्ट्रेटर मैडम, प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज के लगभग 2-3 साल पहले भी मैं यहाँ आया था और इस 2-3 साल पहले आने के दौरान मेरे मन में जो भाव आया था और मुझे पता नहीं था कि रॉबिन सर मुझे वही सब्जेक्ट बोलने को दे देंगे। एंटरप्रेन्योर व्यू ऑफ महुआ yesterday, today and tomorrow। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 2002 या 2003 को आप में से किसी ने नहीं देखा होगा और इनफैक्ट जो इस स्कूल के इस मंच पर विराजमान हैं, इन्होंने भी शायद उसे फील नहीं किया होगा, लेकिन मैंने देखा है, आई हैव सीन विद माई ओन आईज, कि मेरी ही निवास स्थान वाली गली में रॉबिन सर रहते थे और वहीं स्कूल चलाते थे। ये यस्टरडे था और ये टुडे है और टुमारो क्या होगा, उस टुमारो की मैं कल्पना कर सकता हूं कि यहां रॉबिन सर का महुआ में आज के 10 साल बाद एक बेस्ट एआई से रिलेटेड कॉलेज होगा। उस समय शायद मेडिकल इंजीनियरिंग उनकी वैल्यू की बजाय इनके दिमाग की सोच इतनी विकसित होगी, क्योंकि जो आने वाला समय है उसे भांपना। मुझे बताइए आप, एक शिक्षाविद में भी उद्यमिता होती है, ये पहचानना। सच बात यह है कि उद्यमी पहचान सकता है कहां केरल, कहां राजस्थान, और उन्हें यह पोटेंशियल नजर आया। सफर की शुरुआत रॉबिन सर की हो चाहे दिनेश खंडेलवाल की हो, साथ साथ ही हुई। जैसे इन्होंने यहां एक ऐसा शानदार स्कूल खोला जिसके बच्चे हर साल 2-3 बच्चे आईआईटी में जाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा उसने आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग किया है। उस वक्त संभवतः वो पहला था महुआ से, संभवतः पहला बच्चा, और शायद 1998 में या 7 में महुआ के बाहर बोर्डिंग स्कूल जयपुर में जाने वाला भी शायद कुछ चुनिंदा ही बच्चे थे, 2, 4, 5, 6। तो जो नजरिया होता है किसी भी उद्यमी का, एंटरप्रेन्योर व्यू, मैं आपको वो बता रहा हूं। मेरी जब टाटा की डीलरशिप यहां शुरू हुई थी, क्योंकि रॉबिन सर से मेरी चर्चा होती रहती है, और सच बात यह है, एक विकासशील, प्रगतिशील मस्तिष्क के और सोच को रखने वाले एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक है रॉबिन सर, और इनसे मिलके, इनसे बात करके एक पॉजिटिव वेव्स आती है और अच्छा लगता है। मैं उसी नजरिए को आगे बढ़ाते हुए बताता हूं। इन्होंने मुझे एक दिन बात करते करते बताया था कि हम जब यहाँ आए थे तब यहाँ केवल एसबीबीजे होती थी या बैंक ऑफ बड़ौदा होती थी। मैंने इन्हें अपनी चर्चा के दौरान ये बताया कि यहाँ बैंकों को लाने में, बिकॉज मैं जिस वक्त मुझे टाटा की डीलरशिप आई थी तब मुझसे पूछा गया, क्योंकि टाउन लोकेलिटी मेरी डीलरशिप रतन टाटा के दखल के बाद आई थी, और रतन टाटा की सिफारिश नहीं, इनफैक्ट उस समय जब टाटा मोटर्स की डीलरशिप दी जाती थी तो
मेरा जो लिटरेचर गया था, भाई आप टाटा मोटर्स की डीलरशिप खोल के कैसे उसे चलाएंगे, आप देश में वो कंट्री का व्यू पूछते थे। उन दिनों ये एक प्रचलन था कि रतन टाटा डीलरशिप के प्रपोजल को साइन करते थे कि ओके गो अहेड। तो मुझसे ये पूछा गया था कि आप देश में ऑटोमोबाइल व्यवसाय और आपके क्षेत्र में ऑटोमोबाइल व्यवसाय उसे कहां कोरिलेट करते हो, कैसे ये ग्रो करेगा और आपका क्या ओपिनियन है, आप अपनी बिक्री कैसे बढ़ाएंगे। और बिक्री का उतना नंबर था, उसमें 40% था, 60% था कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन और वहां के एरिया की, क्योंकि अगर एरिया की ग्रोथ होगी तो ट्रांसपोर्टेशन की ग्रोथ होगी, उसका नंबर जाता था। तो सच्चाई ये थी कि 2002 में जिस समय रॉबिन्सन यहां स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय मैं टाटा की डीलरशिप की तैयारी कर रहा था। सफर साथ हो गया शुरू। 2002 में जयपुर की डीलरशिप का एड आया, मैंने भी अपना पूरा लिटरेचर भेजा, करीब 250 पेज का लिटरेचर था, जिसमें उनके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी थे, फाइनेंशियल्स भी थे, बट हमारा पर्सनल व्यू था। वो जब वहां गया तो केवल इस वजह से जयपुर में रिजेक्ट हो गया बिकॉज जयपुर में मेरा अपना खुद का लैंड और शोरूम नहीं था, लेकिन उन्होंने उस पर टिक मार दिया और मेरे लिए टाटा मोटर्स ने एक जगह निकाली दौसा सवाई माधोपुर, और उसकी ये डीलरशिप मुझे 2005 में दी, जो 1 अप्रैल 2007 में ऑपरेटिव हुई। और मैं सोचता हूं ये सफर वैसे ही चलता जा रहा है। तो अगर इस व्यू पे बच्चों आपको समझना था तो ये शख्स आपके लिए बेमिसाल है, अनुपम है, लाजवाब है। तो ये तो बात हो गई व्यक्तित्व की। मैं तो कहता हूं कि मैं इनसे प्रेरणा लेता हूं, मैं इनके साथ अलर्ट रहता हूं। अब अपन आ जाए बात महुआ की, जब आपका, क्योंकि इन्होंने महुआ में एक चुनौती दे दी ना कि बच्चा राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करे। 18 साल से कम का बच्चा जापान की यात्रा कर ले, हर साल 2-3 बच्चे आईआईटी में, 2-3 बच्चे नीट में निकाले, सिविल सर्वेंट बना दे, सामाजिक विकास, ये इसे से बोलते हैं कंक्लूसिव ग्रोथ, सामाजिक विकास, शिक्षा का विकास और टोटल सबसे खास नजरिए का विकास। आप लोगों के नजरिए में, क्योंकि मैं तो अपनी बात बता दूं, मुझे ऐसे प्रोग्राम में जाने का कभी मौका नहीं मिला। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ टीचर आएंगे, टीचर वेलकम करेंगे, टीचर कुछ अपने भाषण में कहेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस सारे प्रोग्राम को बच्चों ने प्रोसाइड किया है, बच्चों ने मैनेज किया है। कितनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल सीखेंगे, ये है व्यू, ये है नजरिया, लोगों के नजरिए का विकास करना। अब बैंक खुली, ये तो पॉइंट हो गया बड़े सूक्ष्म से नजरिए का कि महुआ में 8 बैंकें खुल गई, लेकिन मैं आपको ये बता दूं उन 8 बैंकों ने 800 करोड़ रुपए जमा किए हैं या ऋण दिया है, और करीब करीब 465 करोड़ रुपए, क्योंकि कल परसों मैंने फिगर मंगाए थे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और टाटा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, एचडीबी, ये सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने 465 करोड़ रुपया महुआ में धन वितरण किया है, और उसमें ड्यूअलिकेंसी का परसेंट है 8। यानी अगर हम देखें तो 440 करोड़ रुपया लोगों को, महुआ के लोगों से मिलके वो विकास में, वो तरक्की में, वो प्रगति में काम कर रहा है। लोगों को व्यवसाय और शिक्षा और तरक्की के नए अवसर मिल रहे हैं। इसी नजरिए से अगर हम चलें तो महुआ जो कल था, आप इस भूमि से देख सकते हैं, यहां खेती होती थी और यहां कुछ नहीं था। कब? यस्टरडे में। यस्टरडे मीन्स 2003 में, 2004 में, 2005 में। टुडे हम देखें यहां पूरा विकास हो चुका है, आसपास कॉलोनियां विकसित हो गई है। अब टुमारो क्या होगा? क्योंकि तरक्की और विकास भवनों से ही नहीं होता। तरक्की और विकास की झलक इन बच्चों में दिखी है ना। हमारे समय में ऐसा बोल पाना शायद इम्पॉसिबल था। कोई 1-2 बच्चे ऐसे होते थे जो ये बोल सकते थे। और मुझे तो जब मैं चढ़ रहा था
तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा अनुशासित खेल मैदान, और उसमें बच्चे ढंग से खेल रहे हैं और तैयारियां चल रही हैं। मैंने रॉबिन सर से पूछा था कि खेल मैदान भी अपना ही है, बोले नहीं है, किराए का है। तो ये जो नजरिया है, क्योंकि बच्चे ऐसे अनुशासित होना, खेल में ऐसा रुचि रखना मुझे सचमुच बहुत बेहतर लगा। अब जहां तक मेरे अपनी व्यू की बात है, एंटरप्रेन्योर व्यू केवल पैसे से नहीं होता, एंटरप्रेन्योर व्यू होता है नजरिए से, कि आप सोचते क्या है, आपका नजरिया एट ए होल क्या है। उस नजरिए के विकास से मुझे तो इन बच्चों में नजर झलक आ रही है कि जो आज के 10 साल 15 साल पहले बच्चे होते थे, उनका एक्सपोजर, उनका नॉलेज शायद काफी कमजोर रहता था। खैर, मैं एक उद्यमी होने के नाते आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि विकास भवनों से नहीं आता, सोच से आता है, साहस से आता है, निरंतर प्रयास से आता है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स। चाहे आप अपने किसी भी फील्ड में जाएं, आप जो आज सोच रहे हैं, कल क्या नया सोचेंगे, क्योंकि किसी को शायद पता नहीं था। मुझे बता सकते हो आप एआई के बारे में कौन जानता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई जानता है? आप लोग, मुझे लगता है मोबाइल यहाँ अलाउड नहीं होगा जी, मोबाइल अलाउड है? स्कूल में नहीं है, बच्चे भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कुछ बच्चे हैं, एक्सपर्ट्स हैं। आप जानते हैं एआई के बारे में? चैट जीपीटी किसी ने सुना है? आप जानते हैं क्या? और किसी को पता है? सबको पता है? मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लिखना, मतलब इंग्लिश या हिंदी या तमिल या मलयालम, इट्स ए ओनली लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश को लिखना और इंग्लिश को बोलना, मतलब इसे सेंस ऑफ प्राइड समझा जाता था 10 साल पहले। और आज अगर आपने हिंदी में कोई लेटर लिख दिया, उसे आप इंग्लिश में 2 सेकंड में बदल सकते हैं। हमने आज के 10 साल पहले एक बंदा रख रखा था, बिकॉज हिंदी में मेरा हाथ बहुत तंग हो, अंग्रेजी में मेरा हाथ बहुत तंग है, मैं कोई बहुत अच्छा नहीं हूं अंग्रेजी में, छोटा मोटा जितना मुझे प्रोफेशन ने सिखाया उतनी अंग्रेजी बोल लेता हूं, लेकिन अच्छा सा कुछ लैंग्वेज लिखना हो तो शायद नहीं लिख पाता। लेकिन अगर हिंदी लिखना हो तो अच्छे अच्छे हिंदी विज्ञों के सामने मजबूती के साथ खड़ा रह सकता हूं। लेकिन जब भाषा का ट्रांसलेशन का एआई आया तो पूरी चीजें बदल गई। और मुझे तो अभी 4 महीने पहले मेरी मदर एडमिट थी, तब पता चला कि एआई तो यहां भी एंट्री कर चुका है। हमारी मदर एडमिट थी, उसकी एक्सरे रिपोर्ट, उसकी ब्लड रिपोर्ट, उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट चैट जीपीटी में स्कैन करी, डायग्नोसिस वही बता दिया जो डॉक्टर ने 1 घंटे बाद बताया था, हमें पहले पता था। मैं आपको सच बता रहा हूं बच्चों, आने वाला कल इतना तेज तर्रार होगा कि आपकी सृजन क्षमता, आपकी क्रिएटिविटी मीन्स, और आपकी अंदर की सोच और कल्पना शक्ति, ये संसार और ये जहां आपका जो बनेगा वो आपकी इसी सृजन क्षमता से बनेगा, आपकी कल्पना शक्ति से बनेगा, आपके सोच से बनेगा, आपके साहस से बनेगा, आपके निरंतर प्रयास से बनेगा। और ये जो आपकी तरक्की है ये महुआ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो कल जो महुआ होगा वो कुछ बेमिसाल होगा। यहां आज के 10 साल बाद में भी जिला मुख्यालय हो, जैसे अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, रॉबिन सर बता रहे थे, हम आए थे जब यहाँ एक भी कॉलेज नहीं था, आज से 5-6 डिग्री कॉलेज है। तो 10 साल बाद हम जब चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से 5-7 मेडिकल कॉलेज होंगे, 5-7 इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, एजुकेशन का बहुत बड़ा हब होगा। और पता चलेगा रॉबिन सर आज कहाँ गए, कि आज बोले वो जयपुर के उस पार्ट में है, वहां भी उनका एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, उधर भी उनका इंस्टीट्यूट चल रहा है, और इंस्टीट्यूट चल रहा है उससे अर्न कर रहे हैं, ये नहीं है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वो आ रहा है। 2010 में मेरा बेटा जब अपने आईआईटी के 4 दोस्तों के साथ आया था, तो उसे सवाई माधोपुर सेंचुरी घुमाने के लिए मैं ले गया था। मैंने उन बच्चों से पूछा, चारों से, इंक्लूडिंग माय सन, कि जिंदगी में हमें चाहिए क्या होता है। जब ऐसा व्यू नहीं था, हमारा तो नहीं था, यही यस्टरडे था हमारा,
लेकिन टुडे क्या है मैं वो बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा हमें जिंदगी में चाहिए क्या होता है, अगर हम नौकरी करते हैं या हम कोई कारोबार करते हैं तो बेसिकली हमें 4 चीज चाहिए होती है। नंबर 1, इसमें कोई शक नहीं, अनडाउटेडली पैसा, क्योंकि आदमी की जरूरतें हैं, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, अनडाउटेडली पैसा पहला। दूसरा जो चाहिए वो थी नॉलेज, कि हम जो करें उससे न केवल पैसे का अर्जन हो बल्कि उससे नॉलेज भी बढ़े। और तीसरा जो उन्होंने मांग की वो थी रेस्पेक्ट, कि जो हम करें उसमें हमें भी अपने मन में सम्मान हो, लोग भी हमें सम्मान से देखें। और फिर चौथी चीज बोले वो भी जितनी इंपॉर्टेंट है वो है सेंस ऑफ अचीवमेंट। सेंस ऑफ अचीवमेंट मतलब जैसे रॉबिन सर ने ये कहा, कौन क्या नाम था वो एआई वाले का, इसे खड़ा किया, दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ अचीवमेंट। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये 2 बच्चियों को काम दिया जाए, एक दीवार पर कील लगा देगा, एक हथौड़ा दे दिया जाए। इस एक बच्ची ने 1-2 एफर्ट किए और नहीं लगा पाई, दूसरी ने उसे लिया और फटक से एक झटके में लगा दिया। दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि जो चेहरे पर भाव आएंगे वो भाव वही आपकी तरक्की के लिए मिसाल है। आप जो करें वो बेहतर करें और वो एक दूसरे की तुलना नहीं करें, कल से बेहतर करें। आपने कल 3 बार की चोट में हथौड़े की कील लगाई थी, आज कोशिश करें उसे 2 में करें और कल जो कोशिश करें उसे 1 में करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी सोच, आपके नजरिए से ही महुआ का विकास होगा और इसका टुमारो जब होगा, क्योंकि आज जिन्हें ये बोलने में झिझक होती है, मुझे भी हुई थी कि मैं महुआ जैसी छोटी सी जगह पे आता हूं, तो आज के 10 साल बाद कि मैं महुआ से जैसी छोटी जगह से आता हूं ये नहीं बोल के बड़े गर्व के साथ बोल सके कि मैं महुआ से आता हूं। धन्यवाद, आभार, मेरा धन्यवाद। आपने मुझे इस तरह का मंच दिया, मुझे ध्यान नहीं है, शायद ये जीवन का दूसरा मौका होगा, पता नहीं कब, जब बच्चों को मैंने संबोधित किया है और बच्चों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। आई सैल्यूट टू यू, योर एंटरप्रेन्योरशिप व्यू। Good morning, sir. My name is Erlin Mary Thomas. I'm from class 10 गंगा। मुझे ये पूछना था कि जैसे सर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले लाइक हमारे माइंड्स में थॉट्स रहते हैं या इट्स नॉट गोना बी सक्सेसफुल, बट हम कोशिश करते हैं, तो ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं ना सर स्टार्टअप करने से पहले हमें माइंड में रखना चाहिए कि या आगे बढ़ने के लिए। ओला उबर क्या चीज है सब जानते हैं? अब हाथ नहीं खड़ा किया, मुझे लगा 10 लोग ही जानते हैं। सब जानते हैं ओला उबर के बारे में? बुक माई शो कितना जानते हैं? सब जानते हैं। यूट्यूब कितना जानते हैं? सब जानते हैं। ये क्या है? ये सारी एप्स हैं। किसने बनाई है? किसी स्टूडेंट ने। ओला कैब में क्या समस्या है कि समस्या से मतलब ओला कैब ने किस समस्या का समाधान किया? ओला कैब के फाउंडर का नाम, जिसने ये बिजनेस शुरू किया, वो है भावेश बंसल। भावेश बंसल मेरे बेटे का 2 साल 3 साल सीनियर था। जैसे मुझे यहां आज तो मैं गाड़ी लेके यहां आ गया, लेकिन मुझे यहां आना पड़े और यहां से फिर मुझे वापसी जाना पड़े। मैं किसी काम से होली एंजल्स स्कूल में आया, मुझे महुआ के बस स्टैंड पर जाना है और अपन ये मानते हैं अपन 10 साल आगे के विजन में चलते हैं, महुआ बहुत बड़ा शहर बन गया, लेकिन यहाँ कोई ऑटो रिक्शा नहीं है, यहाँ कोई कार नहीं है, टैक्सी नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा? परेशान होऊंगा, यहाँ से पैदल जाऊंगा। ऐसा ही उसके साथ हुआ। उसने इस प्रॉब्लम को असेस किया तो उसने फिर उसके बाद देखा कि यार ये लोग बहुत ग्रसित रहते हैं इस समस्या। जिस दिन आप किसी समस्या का समाधान निकाल देते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। महुआ में शिक्षा की एक समस्या थी। लोग सचमुच, मैं बताऊं आपको इसका उदाहरण,
मेरे मंडावर में फैमिली के लोग रहते हैं, कजिन ब्रदर वगैरह। आज के 2 साल पुरानी बात बता रहा हूं, मैंने रॉबिन सर के साथ शेयर की थी ये बात। वो कजिन ब्रदर से मैंने पूछा, क्या मैंने सुना तूने बच्चे महुआ भेज रहा है? बोले हाँ, कहां भेज रहा है? बोले होली एंजल स्कूल। 4-6 दिन पहले नवरत्न बंसल एडवोकेट है महुआ के, जिनका बच्चा IITN है, उसके पूछा मैंने, तो IIT के तो बच्चे ने स्कूलिंग कहां से की? बोले होली एंजल से। ओके, ये क्या था? ये बेसिकली लोगों की, मैंने अपने बच्चों को बोर्डिंग में भेजा, मेरा बच्चा IIT में आया, वो जयपुर पढ़ता था, वो होली एंजल्स में नहीं पढ़ा, वो जाने का ईयर ही उनका वो था, जब ये शैशव काल में था स्कूल। लेकिन मुझे आज देख के लग रहा है काश उस समय ये खुला हुआ होता। तो ये इन्होंने महुआ की शिक्षा की, बच्चों की इस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस और असेस किया और एक सॉल्यूशन दिया और उस सॉल्यूशन पर काम किया। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है कि जहां जो बैंक आई है, बैंकों ने देखा ना कि यहां इट कैन ग्रो अवर बिजनेस। यूट्यूब आप देखते हो, मेरे ख्याल से शायद ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है यूट्यूब में जो नहीं आती हो। और ये गूगल पे आप देखते हो, कुछ भी चीज आप पूछ लो, क्या पोजीशन है आपको पता है? गूगल वाला, जिस आदमी ने ये इंटरनेट से गूगल वाला कॉन्सेप्ट निकाला, कितना मिलियनियर होगा, और उसने लोगों की समस्याओं को निकाल दिया, समाधान कर दिया है। नहीं देख रहे हो? मतलब पहले कहीं जाते थे किसी शहर में, रविंद्र सर आपको तो पता होगा, अगर हमें पता करना है सब कैलाश नगर दिल्ली में जाना है तो पूछते रहो, उन लोगों से पूछते थे, पान वालों से पूछते थे, और आप कैलाश नगर जाना है और लगाओ गूगल लोकेशन, भेजो, पहुंच गए वहां। तो जो ये विकास है, उस विकास से बीच में से समस्याओं को ढूंढना, समस्याओं को खोजना और उनके अच्छे समाधान के विकल्प देना, दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। आई एम फ्रॉम क्लास 9 गोदावरी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी भी बिजनेस में हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारे पास आइडियाज होते हैं, हमारे पास कैपिटल होता है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे पास लेबर होता है। बट मेरे ओपिनियन में किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल या राइज करने के लिए पीपल्स का, जो पीपल लोग होते हैं, उनका इंटरेस्ट हमारे बिजनेस या आइडिया में होना चाहिए। तो फिर आप क्या बता सकते हैं कि किसी भी अगर हमारे आइडियाज और प्रोडक्ट में किसी भी लोगों को अगर इंटरेस्ट दिखाना है तो क्या उसका कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र हो सकता है जिससे लोग हमारे प्रोडक्ट और आइडिया में उन्हें इंटरेस्ट आए? थैंक यू। जो अभी जिस सब्जेक्ट पे बात चल रही थी, एक अच्छा बिजनेस लीडर लोगों को जोड़ सकता है, अपने स्टाफ को अलाइन कर सकता है, और इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जो ये ओला कैब वाला कॉन्सेप्ट, इसमें लोगों की समस्याओं को नहीं आ रहा, बल्कि इसमें टैक्सी ड्राइवरों की समस्या को भी आ रहा कि यहां तो मैं होली एंजल्स स्कूल में खड़ा बस स्टैंड के लिए जाने के लिए तरस रहा हूं, मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही। लेकिन दूसरी ओर इसी पाली मोड़ के नुक्कड़ पे टैक्सी वाला खड़ा है कि उसी 1.5 घंटे से कोई सवारी नहीं मिल रही। समझ रहे बात? और तीसरी ओर देश में यातायात की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है और उन्हें कुछ समाधान नहीं सूझ रहा। एक साथ 3 समस्याओं को अटैक किया। मुझे दूसरी टैक्सी करने के लिए 250 रुपए देना पड़ रहा था क्योंकि वो महुआ से आती, समझ रहे? और ये पाली मोड़ पे खड़ी हुई, हो सकता है मुझे 180 में ले जाए, तो मुझे तो 70 का फायदा हुआ। पाली रोड पे खड़ी टैक्सी को जाने का खर्चा अगर 120 रुपए आता है तो महुआ वाली को यहां आना और जाना मिलेगा 250 रुपए, उससे भी ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ी। और सरकार के जो सरकार में नुमाइंदे बैठे हैं, नेता बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उन्हें इस समस्या पे काम नहीं करना पड़ा। एक प्रॉब्लम इजी हो गई, सॉल्व हो गई, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकार की बहुत गहरी समस्या है। उन्होंने इस एक आइडिया से, अपनी लीडरशिप से, अपनी वैचारिक शक्ति से, अपने काल्पनिक शक्ति से, सृजन क्षमता से इसे दूर कर दिया। तो एक अच्छा बिजनेस लीडर इसे डील कर सकता है। आपको मैं बता दूं, जिस समय टाटा की डीलरशिप आई थी
तब 2 साल तक हैवी लॉसेज में थी, बिकॉज लोग ट्रेंड नहीं थे, लोग अलाइंड नहीं थे। लोगों को ट्रेंड किया, अलाइन किया, हो जाता है सब। I'm from class 9 गोदावरी। मैं पूछता हूँ कि काफी सारे बिजनेसमैन होते हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है कि कस्टमर सर्विस। अगर आपके ऐसी कोई वैल्यू जिसमें आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहें, भले उससे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, ऐसी एक वैल्यू जिसमें आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आगे चलकर मेरा फ्यूचर को अभी मेरे को पता नहीं है, अगर भले मैं बिजनेसमैन बना तो ये मेरे लिए एक सीख की तरह काम आएगा। थैंक यू। मेरे यहाँ भी है ये गाड़ी मरम्मत को आई, और आपने, क्योंकि हमारा टाटा का कॉन्सेप्ट है कि गाड़ी जैसी वर्कशॉप में घुसती है, कोई भी गाड़ी, कार भी हो चाहे ट्रक भी हो, मतलब टाटा में नहीं, थ्रू वर्ल्ड अब ये कंपनियों का कॉन्सेप्ट हो चुका है कि प्रोवाइड टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट। आपका कोई कार हमारी वर्कशॉप में आई, आपका कोई ट्रक हमारी वर्कशॉप में आया, तो आपको हम टाइम एस्टिमेट देंगे, कॉस्ट एस्टिमेट देंगे कि आपकी गाड़ी 3 घंटे में मरम्मत होगी, 7,500 रुपए उसमें खर्चा आएगा। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहां से शुरू होता है? पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं थे, अब हमने वो गाड़ी खोली और हमें ये पता चला कि 7,500 रुपए नहीं, इसमें 9,500 रुपए लगेंगे, बिकॉज इसमें एक पार्ट्स और लगना है, और इसमें 3 घंटे के बजाय 5.5 घंटे लगेंगे। तो सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों की ये फिलॉसफी है कि आप अपडेट करो कस्टमर कि 9,500 लगेगा, 5.5 घंटे लगेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा। तो इस पर तो बहुत सारी रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी मेरा एक पेट्रोल पंप भी है, उसकी मैं ट्रेनिंग में गया था, तो कस्टमर सर्विस की जब बात आ रही थी तो मुझे वाकई में फील हुआ कि वहां अगर आप कहीं डीजल लेने जाते हैं और डीजल लेने जाने पर आपको टाइम मिलता है और मुश्किल 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, आप गए, गाड़ी रोकी, आपने बोला डीजल, उन्होंने कहा सर कितना, 25 लीटर, आपने पैसा दिया, गाड़ी चली गई। लेकिन मुझे ये बताया गया कि आप अपने लोगों को एजुकेट करो, और एजुकेट, क्योंकि ये लड़के 9th 10th वाले होते हैं, उनके मन में ये कॉन्सेप्ट दिलाओ कि जैसे ही रॉबिन सर अपनी गाड़ी का शीशा खोले, एक अच्छा सा चेहरा अभिवादन करते हुए, मुस्कुराते हुए अभिवादन करे, गुड मॉर्निंग बोले, नमस्कार बोले, जो भी कुछ बोलना है वो बोले। वो 1 सेकंड का बोलना अपनत्व जोड़ देता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड कस्टमर सर्विस, कि कस्टमर को प्लीजेंट भाव देना। तो ये अगर आप में है, आप किसी भी कारोबार में आए, कामयाब होंगे। First of all, good morning. I am Bhumika Mahar from class 11. So sir, my question is, according to you, what's the one thing जो कि एक गुड बिजनेसमैन में होनी चाहिए आपकी तरह, जो कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन को टॉप 1% की कैटेगरी तक ले जाए? सर ये क्वेश्चन था कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है कि जो कि एक गुड बिजनेसमैन में होनी चाहिए जिससे वो नॉर्मल लेवल के बिजनेसमैन से टॉप 1% तक पहुंच जाए? पहले ये चर्चा हो चुकी है। अगर एक बिजनेसमैन को बनने के लिए 6 को देखे जाए, उसको 3 चीजों से जोड़ा जाता है। 3M, उसे मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छा आना चाहिए, वो स्टाफ को, वो कस्टमर्स को, वो स्टेक होल्डर्स को, जो भी जहां भी कहीं मैन है उनको मैनेज करें। फिर दूसरी चीज बात मानी जाती है, जो सेकंड एम है, वो है मनी। वो मनी को ठीक से मैनेज करें। और तीसरी चीज, जिसे आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, वो है मटेरियल। आप जो कुछ उसे दे रहे हैं, अगर ओला कैब की वो ऐप चलना बंद हो जाए या चलने में बार बार प्रॉब्लम आए, आप बता सकते हो? ऐप फ्लिपकार्ट की अच्छी चलती है, अमेज़न की? मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था, हो गया कंफ्यूजन? तो ये है मटेरियल। अब मैं आपको बता दूं बात, आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी या मटेरियल, एवरीबॉडी कैन मेक। आज जो आपने बनाया है, कल कोई दूसरा भी बना देगा,
परसों फिर कोई तीसरा भी बना देगा। बट जो अभी इन्होंने पूछी वो क्या थी? कस्टमर सर्विस। अगर आप मुझसे कोलगेट की पेस्ट लेने आए और अगर आप इनसे भी कोलगेट की पेस्ट लेने आए, दोनों जगह पर 12 रुपए 70 पैसे की मिली, लेकिन मुस्कुरा के अभिवादन जिसने कर दिया, मेरे यकीन है सक्सेस वो होगा। तो जिसने मनी को, मटेरियल को और मैन को अब ये मुस्कुरा के कर दिया, ये कस्टमर सर्विस भी है और यही मैनेजमेंट भी है कि वो सामने वाला चाहता क्या है। सामने वाला और तो कुछ नहीं कर सकता ना। आप कोलगेट पेस्ट में क्या कर सकते हो? 12 रुपए 70 पैसे की है, मुस्कुरा के तो दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट। One more good session of interaction we completed with this outstanding personality. See, with this कुछ पल angels के साथ talk series, when we planning about this thing. Actually, yesterday also I told you, its planning is started from the last year onwards.